Hello, good morning, student. Welcome. I am Pradeep Sharma. Today we are going to start the second part of this lecture. You know, 1 minute. So, in first section, we discuss about the separation techniques. First separation technique, separation a solid from other solid. Already we have discussed in the previous section. But right now we are going to start the discussion of separating a insoluble solid from liquid. It means we have to separate the solid, and that solid is insoluble from liquid. It means insoluble solid is mixed in the liquid, we have to separate it out, right? So for this process we first study about sedimentation and decantation. Sedimentation and decantation try to understand two phenomena. Suppose you have a muddy water. You have a muddy water means you have water and mud. Okay. Whenever you have a muddy water, you kept a muddy water in a beaker. Undisturb it for 2 to 3 minutes or 5 minutes. Undisturb it. Leave it. Keep it without disturbance. What will happen after some time? The fine particles that are suspended and we can say that are insoluble in the liquid, that fine particles settle down. That fine particles will settle down, and on the top layer there will be a clear water. Suppose this is our beaker. The fine particles will settle down, and on the top layer there will be a clear water. So settle down of the fine particles of the insoluble solid, settle down of the insoluble solid, that process is called sedimentation. Try to understand two phenomena. Settle down of insoluble solid on the bottom of the beaker, that process is called sedimentation. And there will be a clear surface of water, clear waters on the surface, on the top layer, and thus pouring out the water into another beaker without disturbing the sediment. That process is called decantation. I think you have cleared. Yes or no? Okay. So sedimentation, that is settle down of insoluble solid, and decantation means when you pour out the upper liquid without disturbing the sediment, that process is called decantation. Clear? Yes. You can increase the sedimentation rate of the muddy water if you want. If you add alum in the beaker, suppose it is your beaker, the fine particles are continuously settled down on the bottom surface. You can increase the rate of sedimentation by increasing the alum. When you add the alum, it will mix with your fine particles and make a aggregate, and it will, due to the formation of aggregates, it will become heavy, and then it will settle down faster on the bottom surface. So its speed will increase. That process is called what? Can you tell? Loading. That process is called loading. So in the loading process you can speed up. Clear? Same process we can utilize for two immiscible liquids. Immiscible liquid means two liquids are there that are not mixed together, जो एक दूसरे के साथ mix नहीं होते, that is called immiscible liquid. Suppose you have oil and water. So what will happen? There will be two surface of the liquid, two layers of the liquid. That top layer, that is of oil, because oil is light, and second one, that is water. So oil can be poured out by the decantation process, and water, that is by sedimentation. Clear? Move to next part. This process is
sedimentation and decantation. Sedimentation means settle down of the fine particles. Decantation means pouring out the water, top water, that is called decantation. Clear? Loading means to speed up the sedimentation process we add alum, that is called loading. Clear? Now filtration. Suppose you have completed the sedimentation and decantation. Still some mud particles may be suspended in the water. So you will utilize a filter paper through which the your water will be passed out. So what will happen? The filter paper should have the smaller size pores, and through that pore, when you pass out the water, the impurities will remain on the surface of filter paper and clear water will be passed out. क्लियर है? सिंपल फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना होता है. सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन करने के बाद कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो उसके अंदर सस्पेंडेड रह जाते हैं. उनको फिल्टर आउट करने के लिए अपन एक फिल्टर पेपर लेते हैं. फिल्टर पेपर की जो साइज़ होती है पार्टिकल की वो छोटी होनी चाहिए, यानी अपनी इम्प्योरिटी जो है उससे छोटी होनी चाहिए. तो इम्प्योरिटी जब वो सरफेस के ऊपर रह जाएगी, नीचे क्लियर वाटर आ जाएगा. ये प्रोसेस जो अपन ने देखा सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन और सेकंड जो फिल्ट्रेशन है, उसमें क्या किया अपन, एक सॉलिड को सेपरेट किया. इनसोल्यूबल सॉलिड को सेपरेट किया. किससे सेपरेट किया जी? लिक्विड से सेपरेट किया. अब अपन आगे जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर अपन क्या देखेंगे? देखिए, सेपरेटिंग ए सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. यानी एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर अपन ने सॉलिड लिया है. पहले भी सॉलिड था, लेकिन अब ये जो सॉलिड है वो कैसा है जी? सोल्यूबल है. और पहले वाला जो अपन देख रहे थे वो क्या था? इनसोल्यूबल था. अब सोल्यूबल जो सॉलिड है उसको सेपरेट करना बहुत इजी होता है, और उस प्रोसेस का अपन क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे? इवेपोरेशन. You know, I think you all are familiar with the process of evaporation. Evaporation means conversion of water into water vapor. Conversion of water into water vapor. That process is called evaporation. So, suppose you have a mixture of salt and water. Still it will shake it well. इसको mix करेंगे properly. What will happen? ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड. सॉल्ट का अपने पास क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा. सॉल्ट इसमें डिसअपियर हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा. आफ्टर सम टाइम यू विल प्रोवाइड हीट टू द सॉल्यूशन. आप सॉल्यूशन को हीट प्रोवाइड करवाएंगे. व्हाट विल हैपन? वाटर विल बी इवेपोरेटेड. वाटर इवेपोरेट होकर के एटमोसफियर में चला जाएगा. एंड व्हाट विल रिमेन इन द बीकर? द सॉल्ट विल रिमेन इन द बीकर. सॉल्ट वो आपका क्या है? सोल्यूबल सॉलिड है, जो उसके अंदर वाटर में पहले सोल्यूबल था तो मिक्स हो गया था, डिजोल्व हो गया था. लेकिन जैसे ही अपन वाटर को इवेपोरेट कर दिया, नीचे अपने पास सोल्यूबल सॉलिड रह गया. सो बाय दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन, वी कैन सेपरेट वाटर. वी कैन सेपरेट आवर सोल्यूबल सॉलिड. इट मीन्स आवर सॉल्ट फ्रॉम वाटर. वाटर से अपन सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं. ये प्रोसेस क्या हो गया? इवेपोरेशन हो गया. इवेपोरेशन का जस्ट ऑपोजिट जो प्रोसेस होता है वो आपका क्या होता है? कंडेंसेशन. कंडेंसेशन आपने पता होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो क्लाउड्स वगैरह बनते हैं वो कंडेंसेशन से बनते हैं. कंडेंसेशन जस्ट इवेपोरेशन के ऑपोजिट प्रोसेस होता है. वाटर वेपर्स विल कन्वर्ट इनटू वाटर. वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. आपने देखा होगा वाटर वेपर इन द एयर. जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर्स होती हैं, जैसे ही वो कूल डाउन होती हैं, है ना, तो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर के क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं. क्लाउड और ज़्यादा कूलर होते जाते हैं और फाइनली वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थ के ऊपर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे आ जाते हैं. तो ये हो गया आपका कंडेंसेशन. तो अपन ने सबसे पहले जो देखा था वो क्या देखा? अपन ने सबसे पहले जो देखा था उसके अंदर अपन ने इवेपोरेशन पढ़ा था. इवेपोरेशन में अपन ने क्या किया? सॉलिड को सेपरेट किया. कंडेंसेशन जो होता है, कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है कि इसके जो वाटर है, वाटर वेपर जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली वो क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है. और क्लाउड्स में कन्वर्ट होने के बाद रेनफॉल के रूप में नीचे ही. इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों को अपन एक साथ अपन इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे अपन इसको यूटिलाइज करते हैं? देखिए, मान लीजिए अपन एक क्या लेते हैं? केटल लेते हैं.
ठीक है। ये आपने एक केटल लिया, केटल के अंदर आपने क्या किया, सपोज सॉल्ट प्लस वाटर अपने यूज़ कर इसके अंदर डाल दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको नीचे से आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे आप इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, इसके अंदर जो वाटर था उससे क्या बनेगी, वाटर वेपर। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक मेटल की प्लेट रख देनी है। मेटल की प्लेट के ऊपर ये टच करेगी वाटर वेपर, ठीक है। वो क्या करेगी, कूल डाउन होगी। कूल डाउन होगी तो नीचे एक बाउल आपको रखना है और उसमें वाटर वेपर जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, वापस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पे तो कौन सा प्रोसेस काम कर रहा है, आपका कंडेंसेशन काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर से क्या बन रहा है, वाटर वेपर बन रहा है। तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस काम करी है, आपकी इवेपोरेशन काम कर रही है, ठीक है। तो वाटर से वाटर वेपर बना, प्रोसेस हुई इवेपोरेशन। वाटर वेपर से अगेन वाटर बना, प्रोसेस आपका होगी कंडेंसेशन, ठीक है। तो वाटर वेपर वाटर बन गया और इसके अंदर रिमेनिंग जो रहेगा, जो बच जाएगा, वो आपका क्या रह जाएगा, सोल्ट रह जाएगा। यानी सोल्ट प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें से सोल्ट को अपन को सेपरेट करना है, तो दोनों प्रोसेस को अपन यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें आपकी इवेपोरेशन भी हो जाता है और आपका कंडेंसेशन भी हो जाता है। क्लियर है, ठीक। लास्ट एक वीडियो और बनेगा इसका, उसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर जो है ना, वहाँ से अपन सॉल्ट को कैसे ऑब्टेन करते हैं, और 2-3 टर्म्स अपन पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है ना, सॉल्यूट क्या होता है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर L3 के अंदर डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये सेकंड पार्ट आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, अगेन वही चीज़, अपनी डाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे कुछ लिखें, कमेंट में जाइए, वहाँ पे लिखें, हम कोशिश करेंगे उसको आंसर देने की। इफ़ यू लाइक देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मैक्सिमम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।